Hello everyone, my dear students, how are you all? So today we are going to see the class 9th chapter chemistry portion, matter in our surroundings. So pay proper focus and attention to this because we are studying the chemistry portion, and please give a like to this video and share with your friends. So now, when we see to the vast variety of things or substances around us, for example, there are many things near you now. Chair is there, table is there, and rocks, mountains, these things, and many more things are there. Plants are there, animals are there. Okay, soil is there, forest is there. These all things what are these all things made up of? ये सब सारा चीजें जो है, ये सब सारा चीज किससे बनता है? These all things, we can say, these all things are made up of matter. So these all things are made up of matter. So now, what is matter? Matter क्या होता है? Matter is anything that has mass and occupies space. क्या होता है मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. मतलब अपना एक मास होता है एंड वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है. मीन्स दैट इट हैज वॉल्यूम. मैटर इज एनी सब्सटेंस विच हैज इट्स ऑन मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस. ओके, सो नाउ हियर मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मीटर इज एनीथिंग विच हैज, जिसका एक कोई मास होता है और फिर जिसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है. सो दिस इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड है? दिस इंक्लूड इवन द टाइनियस्ट ऑफ द टाइनियस्ट थिंग्स. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब जो होता है, ये सब भी क्या है? दिस ऑल आर व्हाट? दिस ऑल आर मैटर. दिस ऑल आर मैटर. इवन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो होता है, वो सब भी क्या होता है? मैटर का एक पार्टिकल ही है. मैटर है. बट नाउ हियर we can see photons, photons, photons. Okay, and energy waves. ये जो होता है photons, what are photons? Photons are energy packet, इसको हम लोग बोलते हैं. and this is the constituent particle of sunlight. मतलब ये sunlight में पाया जाता है. sunlight जो होता है, sunlight में पाया जाता है ये photon. और फिर energy waves जो है, are they matter? ये सब matter है क्या? no, they are not matter. they are not a matter. ये सब matter नहीं है. These photons and energy waves are not matter because they do not have any on mass and they does not occupy any space. मतलब कि इसका अपना कोई एक मास नहीं है और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है. and so these are not matter. now we let us see some history of this matter. मतलब कि ये मैटर कैसे डिस्कवर हुआ, किसने नाम दिया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे. तो पहले का अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो था, दिस इंडियन फिलोसोफर्स, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स, दे स्टेटेड दैट, इन लोग ने क्या दिया? दे स्टेटेड दैट कि ऑल थिंग्स इन आवर सराउंडिंग आर मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है. मतलब हम लोग का सराउंडिंग में जितना भी सारा चीज हम लोग देख रहे हैं, ये सब 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है. एंड दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स आर नोन एज द 5 तत्व. 5 तत्व. Okay, these 5 things. So these 5 elements make up all the things in our surrounding. What are these 5 elements? These 5 elements are air, water, earth, sky, and fire. So these are the 5 basic elements of all, with the help of all living things, all living and non living things are made up of. Means that कि हम लोग का सराउंडिंग में जितना भी सारा चीज़ है वो सब किस चीज़ से बना हुआ है? यही 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है. 5 तत्व जिसको हम लोग बोलते हैं. अर्थ हो गया, वाटर, एयर, स्काई एंड फायर. This is according to the concept of the Indian philosophers, and many more Greek philosophers. Okay, also came. Greek philosophers also were of this opinion only. मतलब कि वो लोग भी, ग्रीक फिलोसोफर्स भी यही सोच रहे थे कि हाँ, कि
जितना भी सारा हम लोग के सराउंडिंग में चीज़ें हैं, सब्सटेंसेस है, वो सब एलिमेंट से ही, बेसिक एलिमेंट से ही बना हुआ रहता है. दे वेर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन ऑफ दिस. नाउ इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. वी विल स्टडी अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इन आवर coming subsequent chapters. In this chapter we will study only about the physical properties of matter. So now once again we will be discussing about the physical properties of matter. So पहला property जो है, first property is that matter is made up of particles. मैटर जो होता है, जो सब्सटेंस मैटर जो होता है, वो बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ रहता है. एंड दिस पार्टिकल्स ऑल्सो वी कैन से एंटिटीज, एंटिटी से बना हुआ है. मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और एंटिटीज. ठीक है. तो पहले का जो साइंटिस्ट सब था, कोई इस ओपिनियन में था कि मैटर इज ए कंटिन्यूस ब्लॉक. मतलब कि मैटर जो होता है एक कंटिन्यूस ब्लॉक है. कंटिन्यूस ब्लॉक है, मतलब मैटर जो होता है कंटिन्यूस ब्लॉक है और इसका अंदर में कोई भी छोटा छोटा पार्टिकल्स नहीं है. कुछ साइंटिस्ट ये ओपिनियन के थे, कुछ साइंटिस्ट ये ओपिनियन के थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड मैटर इज नॉट कंटिन्यूस. मतलब मैटर जो है वो बहुत ही, उसका अंदर में सब्सिक्वेंट पार्टिकल है, बहुत ही छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है. मतलब सपोज ये मैटर है एक, तो मैटर के अंदर में बहुत पार्टिकल है, इसका अंदर में बहुत सारा पार्टिकल से बना हुआ है. कुछ साइंटिस्ट ये ओपिनियन के थे. कुछ साइंटिस्ट दूसरा ओपिनियन के थे कि मैटर जो होता है वो एक कंटिन्यूस ऐसे करके ब्लॉक है, इसका अंदर में कोई भी पार्टिकल उर्टिकल नहीं है, एक सिंगल ब्लॉक है, एक सिंगल पीस है. ठीक है. तो नाउ वी विल सी दैट कौन सा इसमें से करेक्ट वाला है. ऑब्वियसली तुम लोग को पता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो ये प्रूफ करने के लिए वी विल सी हियर वन एक्सपेरिमेंट हियर. What we will do, we will take a beaker, a glass beaker we have taken here, and this is water. We have pour water in this glass beaker. Now what we will do, we will add some salt or sugar to this water. We dissolve this salt or sugar to water. dissolve कर दिए, मतलब इसमें डाल दिए. डालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, we will observe the level of the water. मतलब कि ये वाटर का जो लेवल यहाँ तक था, इससे इंक्रीज होकर के कहीं और इंक्रीज हुआ है कि नहीं, ये सब हम लोग देखेंगे. सो ऑब्वियसली वी विल फाइंड दैट देयर इज नो इंक्रीज. क्या होगा? नो इंक्रीज इन वाटर लेवल. वाटर लेवल पे इंक्रीज तो नहीं होगा. देयर विल बी नो एनी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर. तो इससे क्या पता चलता है कि अगर ये मैटर ऐसे करके कंटिन्यूस ब्लॉक होता, मैटर इज मेड अप ऑफ लाइक दिस कंटिन्यूस ब्लॉक, तब क्या होता कि ये सॉल्ट और शुगर जो है, सॉल्ट और शुगर इसको हम लोग यहाँ पर डालते, ऐसे करके डालते, तो क्या होता, वाटर लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है, यहाँ तक आ जाता फॉर एग्जाम्पल. बट नाउ क्या हुआ है कि सॉल्ट और शुगर हम लोग जितना भी डालते हैं, फिर भी क्या होता है कि इसका लेवल जो है इंक्रीज ही नहीं होता है. इससे क्या पता चलता है हम लोग को कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ, ये सॉल्ट और शुगर का ये क्रिस्टल है. फॉर एग्जांपल दिस इज ए क्रिस्टल, मतलब कि सॉल्ट और शुगर का जो एक दाना होता है वही है एक, दिस इज शुगर का एक क्रिस्टल है. एंड ये शुगर क्रिस्टल जो है, दिस शुगर क्रिस्टल जब हम लोग पानी के अंदर में डालते हैं, देन इट गेट्स डिजॉल्व, इट गेट्स स्प्लिटर इनटू इट्स पार्टिकल्स. मतलब इसका अंदर में बहुत सारा ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है. ठीक है. दिस इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स. तो ये पार्टिकल्स जो है, ये हम लोग जब पानी में डालते हैं, तब क्या होता है कि ये सॉल्ट और शुगर क्रिस्टल जो है, इट गेट्स स्प्लिटर इनटू पार्टिकल्स. पार्टिकल में स्प्लिट हो जाता है, बहुत छोटा छोटा पार्टिकल टुकड़ा बन जाता है इसका, और यही सब जो है इधर यहाँ जाकर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. इसीलिए क्या होता है कि इसका लेवल जो है ये इंक्रीज नहीं होता है. और अगर ये एक कंटिन्यूस ब्लॉक होता तो क्या होता कि जब हम लोग शुगर और सॉल्ट यहाँ पर डालते तो वाटर लेवल क्या होता, द वाटर लेवल वुड हैव बीन इंक्रीज. बट नाउ दिस नॉट हैपन्स. व्हाई? बिकॉज मैटर इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल पार्टिकल्स. So this proves that matter is made up of particles, and this is the experiment that we do for physical property number 1. So the second property is that matter जो होता है is made up of very small size particles.
ठीक है, मतलब कि मैटर का अंदर में जो पार्टिकल्स होता है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी मच स्मॉल इन साइज, बहुत छोटा होता है. So now for doing this, for proving this, we are doing one experiment here. What we will do, we will take about 1000 ml of water, means 1 liter of water, and in this take about 10 milliliter of potassium permanganate, KMnO4. KMnO4 means what? Potassium permanganate. So we have taken here 10 milliliter of potassium permanganate in about 1000 ml of water, means 1 ml of water. तो क्या होगा, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये है 1000 ml, water is 1000 ml, but potassium permanganate is only 10 ml. Even in this condition also क्या होगा कि the color of the water changes to purple. पर्पल कलर चेंज हो जाता है, पर्पल कलर मतलब इसमें आ जाता है. क्यों, किसके कारण से? पोटासियम परमैंगनेट के कारण से. पोटासियम परमैंगनेट इज डार्क पर्पल, पर्पल इन कलर, पर्पल कलर का होता है, एंड सो इट एड्स, इट गिव्स कलर टू द वाटर. तो यहाँ पर सिर्फ 10 ml है और यहाँ पर 1000 ml है. 1000 ml ऑफ वाटर में सिर्फ 10 ml पोटासियम परमैंगनेट डालते हैं, फिर भी ये पर्पल कलर बन जाता है वाटर. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगेन वी आर पुटिंग 500 ml, फॉर एग्जाम्पल 500 ml ऑफ वाटर फिर से हम लोग डाल के देखते हैं. 500 ml डालते हैं, फिर भी क्या होता है, इट इज स्टिल पर्पल इन कलर, स्टिल इट इज पर्पल, फिर भी पर्पल ही ये बन के रहता है. मतलब थोड़ा सा कलर क्या होगा, फेंट होगा, फेंट FAINT, फेंट मतलब थोड़ा सा कलर में धब्बा होगा, फिर भी क्या होगा, इट विल बी पर्पल इन कलर स्टिल. अगेन वी ऐड 500 ml ऑफ वाटर अगेन, फिर भी क्या होगा, द कलर विल रिमेन पर्पल स्टिल, इसका कलर जो है पर्पल ही रहेगा. ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, इफ यू पुट मोर एंड मोर वाटर, मोर एंड मोर वाटर, ऐसे करके डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, फिर भी क्या होगा, द कलर ऑफ दिस कलर, दिस पर्पल कलर स्टिल रिमेन्स, मतलब कि थोड़ा ना थोड़ा 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 करके पर्पल कलर रहेगा ही. सो दिस एक्टिविटी, इससे क्या हम लोग को प्रूफ मिलता है, क्या ये शो करता है कि हम लोग कितना भी पानी डालें, इसमें कितना भी पानी डालें, जितना बार पानी हम लोग डालते हैं ना, उतना बार क्या होता है, ये पोटासियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल होता है, पार्टिकल्स जो होता है, वो क्या होता है, द क्रिस्टल, ये जो क्रिस्टल होता है पोटासियम परमैंगनेट का, द क्रिस्टल्स गो ऑन डिवाइडिंग indefinitely. क्रिस्टल्स गो ऑन डिवाइडिंग इंडिफिनिटली. क्रिस्टल्स ऑफ किसका, क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट. जब भी हम लोग पानी डालते हैं तो क्या होता है, क्रिस्टल्स ऑफ पोटासियम परमैंगनेट गो ऑन डिवाइडिंग इंडिफिनिटली. मतलब कि एक क्रिस्टल से दो क्रिस्टल से चार से 8 ऐसे करके डिवाइड होते जाता है, डिवाइड होते ही जाता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिवाइड होते जाता है, मतलब कि जो क्रिस्टल है, जो इसका पोटासियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल था, क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल से बहुत छोटा होता है इसका पार्टिकल जो कि डिवाइड होते जाता है. जितना बार हम लोग डिवाइड कराना चाहेंगे उतना बार डिवाइड होते ही जाता है, टिल इट रीचेस ए स्टेज नोन एज एटम. ठीक है. सो दिस एक्टिविटी शोज दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल इन साइज. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव particles of matter have space between them. मतलब एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, खाली स्पेस होता है, एम्प्टी स्पेस इज देयर. तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, पांचवा पार्टिकल ऐसे है. सो ये सब पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के बीच में क्या होता है, इन बिटवीन एवरी ईच पार्टिकल देयर इज स्पेस, थोड़ा ना थोड़ा स्पेस होता ही है. ओके. सो इसको प्रूफ करने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, वी कैन सी एक्टिविटी नंबर 1. एक्टिविटी नंबर 1 हम लोग देखेंगे. एक्टिविटी नंबर 1 में क्या देखे थे हम लोग कि जब हम लोग यहाँ पर एक वाटर बीकर है, वाटर बीकर में क्या किए थे हम लोग, सॉल्ट या शुगर डाले थे. वी पुट सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर.
देन व्हाट हैपन्स कि सॉल्ट और शुगर क्रिस्टल जो है वो क्या होता है, वो डिवाइड होता है, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे करके डिवाइड होता है स्लोली एंड स्लोली, ये बहुत सारा डिवाइड होता है और फिर कहाँ चले जाता है, इट गोज इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर जो है उसका पार्टिकल के अंदर में चले जाता है। मतलब कि ये सपोज ये है एक वाटर का पार्टिकल, दिस इज H2O, दिस इज वन H2O मॉलिक्यूल, दिस इज वन H2O मॉलिक्यूल, यहाँ पर भी एक H2O मॉलिक्यूल है, ये वाटर का पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम लोग सॉल्ट यहाँ पर डालते हैं, सॉल्ट या शुगर, इफ यू पुट सॉल्ट और शुगर हियर, देन व्हाट हैपन्स कि सॉल्ट एंड शुगर पार्टिकल्स ऑल्सो गेट स्प्लिटेड इनटू मेनी टाइम्स, बहुत बार क्या होता है, स्प्लिट होता है। और यहाँ पर क्या है, सॉल्ट एंड शुगर का पार्टिकल जो है वो ये जो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, वाटर पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है यहाँ पर आ जाता है सॉल्ट, यहाँ जो दो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पर आ जाता है ये सॉल्ट का पार्टिकल, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि इसका लेवल जो है इंक्रीज नहीं होता है, द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज, व्हाई, because there are large spaces between the particles of water, ध्यान से सुनो, there are large space between the particles of water molecule, ये जो वाटर मॉलिक्यूल का जो पार्टिकल है इसके बीच में क्या है, बहुत ऐसे एम्प्टी स्पेस है, एंड द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट एंड शुगर का जो पार्टिकल है गोस इन बिटवीन दिस एम्प्टी स्पेसेस, ये जो एम्प्टी स्पेस है ना इसके बीच में आकर के क्या होता है, सारा पार्टिकल, सॉल्ट का पार्टिकल जो है वो सेटल हो जाता है, और सेटल हो जाने के कारण से, ये तो खाली जगह था, इसमें जाकर के घुस गया है, सेटल हो गया है, तो इससे लेवल तो इंक्रीज नहीं होने वाला है अब वाटर का, दैट्स व्हाई द पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम एंड सो द लेवल ऑफ वाटर डज नॉट इंक्रीज। ओके, so this was the third property. Now the fourth property, a physical property of matter is that the particles of the matter are continuously moving. मतलब कि पार्टिकल्स जो होता है, दिस पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, ये क्या करता है, ये कंटिन्यूसली मूवमेंट करते रहता है, इधर उधर मूवमेंट करते रहता है। ओके, तो ये जो मूवमेंट होता है इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू वन एक्सपेरिमेंट नाउ। सपोज दिस इज ए रूम, दिस इज योर रूम, ये रूम है, एंड दिस इज वन कॉर्नर ऑफ द रूम, दिस इज अनदर कॉर्नर ऑफ द रूम। यहाँ पर अपने फ्रेंड को बोलो खड़ा रहने के लिए, एंड हियर you are standing. So what will you do now? You will light one incense stick. एक अगरबत्ती जलाना है यहाँ पर। So if we light one incense stick here, then after some time we will see that your friend in that corner is able to get the odor of the incense stick. मतलब उसको वहाँ तक, वो जो दूसरा कॉर्नर में है उसको भी क्या मिलेगा, ये जो इंसेंस स्टिक है उसका स्मेल फील करेगा, वो उसका खुशबू उसको मिलेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स था ये इंसेंस स्टिक जब हम लोग लाइट करते हैं तब वहाँ से जो पार्टिकल रिलीज होता है, स्मोक पार्टिकल्स में जो खुशबू का पार्टिकल्स होता है वो सब जो रिलीज होता है, तो वो दिस पार्टिकल्स मूव फ्रॉम हियर अप टू दियर, गोस अप टू दियर, मतलब कि ये स्प्रेड हो जाता है। ये कैसे स्प्रेड होता है, वी हैव सीन इट ऑकर्स बाय डिफ्यूजन। सो व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन मीन्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वी हैव सीन दिस इन बायोलॉजी ऑल्सो। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जो मूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। सो हियर द पार्टिकल्स, यहाँ पर क्या था, इंसेंस स्टिक यहाँ पर लाइट किए तो यहाँ पर क्या हो गया, द पार्टिकल्स आर इन हाई कंसंट्रेशन एंड हियर द पार्टिकल्स आर इन लो कंसंट्रेशन। मतलब यहाँ पर तो स्मोक का पार्टिकल नहीं है ना, इंसेंस स्टिक का पार्टिकल नहीं है, तो ये लो कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है। सो द पार्टिकल ऑफ द इंसेंस स्टिक हैज मूव फ्रॉम दिस हाई कंसंट्रेशन टू दिस लो कंसंट्रेशन, एंड सो योर फ्रेंड इज एबल टू फील द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती और इंसेंस स्टिक, एंड दिस शोज दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो अब ये पार्टिकल जो है ये कैसे मूव करता है, सपोज हियर इज वन पार्टिकल, अनदर पार्टिकल, हियर इज अनदर पार्टिकल, हियर इज वन पार्टिकल। सो सपोज दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर, so they will move in a zigzag motion,
फॉर एग्जाम्पल सी हियर, दिस पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल मूव करेगा और आकर के दूसरा पार्टिकल से टकरा जाएगा। दूसरा से टकराने के बाद ये क्या होगा, ये पार्टिकल जो है, ये पार्टिकल ऐसे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और फिर ये तीसरा से टकरा जाएगा। इससे टकराने के बाद क्या होगा, इधर रिफ्लेक्ट होकर के ये ऐसे इससे टकरा जाएगा। सो दिस मोशन, द पार्टिकल्स, जब तक ये मतलब कि ये एक पार्टिकल है, ये एक दूसरा पार्टिकल है, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में ये कैसे मूव करता है, इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन ही है ना, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, एक पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल के बीच में स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। और लेकिन इसका जो होल जर्नी होता है पार्टिकल का, दिस इज इन ए जिगजैग मोशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिगजैग मोशन बोलते हैं। हियर वन स्ट्रेट लाइन, फिर से ऐसा इधर रिफ्लेक्ट हो गया, फिर से इधर ऐसा चले गया। सो दिस इज द होल मूवमेंट इज कॉल्ड जिगजैग मोशन। दिस जिगजैग मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ब्राउनियन मूवमेंट भी बोलते हैं। दिस इज नोन एज ब्राउनियन मूवमेंट। सो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। ये एक्टिविटीज हम लोग को पता चलता है। और ये कैसे मूव करता है, ये दे मूव इन ए ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मोशन कॉल्ड जिगजैग मोशन। ओके, सो नाउ फिफ्थ वन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सो नाउ हियर ट्राई ब्रेकिंग एन आयरन, एक आयरन को बाय ए हैमर। ओके, बाय ए हैमर, एक हथौड़ा से एक आयरन को, नहीं तो एक वुडन ब्लॉक को तोड़ने का कोशिश करते हैं। सो व्हाट वी विल सी दैट इट इज नॉट इजी टू कट, इट इज नॉट इजी टू ब्रेक द आयरन और वुडन ब्लॉक बाय ए हैमर ऑल्सो। मतलब कि उतना आसान नहीं होता है तोड़ना। इससे क्या पता चलता है कि एक पार्टिकल जो है वो दूसरा पार्टिकल को क्या करता है, वो दूसरा पार्टिकल को अट्रैक्ट करके रखता है। ओके, द वन पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट अनदर पार्टिकल। ये फिर यहाँ पर जो तीसरा पार्टिकल है ये क्या करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा, ये इसको भी अट्रैक्ट करेगा। ओके, सो एवरी पार्टिकल ऑफ ए मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है और बाइंड करके रखता है। अपने अंदर में क्या करता है, दे बाइंड करके रखता है। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, बाइंड करके रखता है। अब अगर दिस ये जो बाइंड करके रखता है, यहाँ पर क्या होता है, एक फोर्स बनता है। दिस फोर्स इज नोन एज फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन और कोहेसिव फोर्स, इसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ ए मैटर टू बाइंड विथ इट्स ऑन पार्टिकल इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। मतलब कि अपना ऑन पार्टिकल से, अपना ऑन पार्टिकल्स को जो बाइंड करके रखता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। एंड देयर इज वन मोर फोर्स नोन एज एडहेसिव फोर्स। What is the meaning of adhesive force? Adhesive force means the property of a particle of matter to attract another particle of another thing. ये क्या करता है, adhesive force से attract another particle, another particle मतलब कोई दूसरा सामान का पार्टिकल को क्या करता है, उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो ये हो गया एडहेसिव फोर्स। और अपना खुद का पार्टिकल जो है उसको जो अट्रैक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। फॉर एग्जांपल वाटर, दिस इज ए वाटर मॉलिक्यूल, दिस इज ए पार्टिकल ऑफ वाटर। ये वाटर का एक पार्टिकल है, ये क्या करेगा, ये दूसरा वाटर का पार्टिकल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा। अट्रैक्ट करेगा ही, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा ही। ये जो फोर्स यहाँ पर डेवलप होगा इसको हम लोग बोलेंगे, दिस विल बी नोन एज कोहेसिव फोर्स। ओके, एंड हियर यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल दूसरा एक पार्टिकल है, सपोज ये एक सॉल्ट का पार्टिकल है, तो इसको भी क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब ये दूसरा पार्टिकल को अगर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, देन इट विल बी नोन एज एडहेसिव फोर्स। ओके, तो दूसरा पार्टिकल को अट्रैक्ट करना इसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स। अपना खुद का पार्टिकल को, मतलब वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल खुद को अट्रैक्ट जो करता है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। तो पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है उसका ऐसे ही क्या होता है, दे अट्रैक्ट ईच अदर लाइक दिस, दे हैव कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस। अप टू दिस फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स।